Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the first lecture on the course Organizational Behavior. Before we start with the contents of this lecture, there are a few things that I would like to, introduce with you people or share with you people. उसमें ये है कि of course because we are meeting for the first time virtually, so I would like आपका introduction तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक तो मैं आपको अपना introduction दूंगी. उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर का कोर्स हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसकी आउटलाइन के बारे में आई विल ब्रीफ यू अबाउट द आउटलाइन एंड देन we'd start with the lecture for today. I am basically Dr. Amna Yusuf. I have done my PhD in Human Resource Management from University of Twente, which is in Enschede, the Netherlands. This is one of the technical universities in Netherlands, and it is an internationally known and internationally reputed universities which earns a very high international ranking. So I did my PhD in 2000 by the end of 2011, and that was in 3 years. I finished my PhD, and then I came back to Pakistan and joined ComSats. So since then I am with ComSats working as assistant professor here. Before my PhD I also did my MBA in Human Resource Management. That was also from the same university in the Netherlands. So this MBA was lasting for 1 year. It was a 1-year degree program. So I finished that MBA and then I enrolled in the same university for my PhD. PhD is more like, you can say that it's more interdisciplinary research in my PhD. So it's not specifically HRM, but you can say that it is mainly my PhD is in organizational behavior. My main interest is in organizational behavior, employee attitudes, employee behaviors. Within that, I specifically, because you know that for PhD, when we say that your PhD is in organizational behavior, okay, but that's a very, very, very vast domain. And there are a number of topics within that. जब आप PhD कर रहे होते हैं तो you are very specific. You are extremely narrow and specific. ठीक है? तो specify अगर मैं करूँ अपना topic, तो it was on employee commitment. My PhD, my whole work so far is on employee commitment, and that is my interest, और वो मेरी जो contribution है to the academic literature, that is my key contribution, that I have worked in the area of professional commitment or occupational commitment, जिसके ऊपर अभी तक so far there is very, very, very limited research and knowledge base उसके ऊपर बहुत limited है. तो मेरा काम जो है वो mainly employee occupational commitment के पास है, के बारे में है. अपनी PhD में what I did was that I tried to explore and examine the antecedents of occupational commitment of the employees and the outcomes of the different occupational commitment dimensions. तो अभी आगे future research जो मेरी चल रही है that is also related specifically occupational commitment से related है, but I have also worked on a number of other areas, जो other attitudes को भी मैंने explore किया है, या other areas को भी, जैसे organizational commitment पे भी मैंने काम किया है. दूसरे LMX पे मैंने काम किया, लीडर मेंबर एक्सचेंज पे, हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉई एटीट्यूड्स एंड एम्प्लॉई बिहेवियर्स. ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोएक्टिव बिहेवियर्स पे काम किया है. ठीक है, एंड देन अ नंबर ऑफ अदर कैरियर्स के ऊपर काम किया है, एंड अ नंबर ऑफ अदर ह्यूमन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स पे, विच इज़ अ स्पेसिफिक HRM टॉपिक है, उसके ऊपर भी काम किया है. तो इट्स नॉट दैट आई हैव वर्कड स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक, बट आई हैव वर्कड ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल. लेकिन माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन कमिटमेंट के ऊपर मेरी स्पेशलाइजेशन है, और दैट इज़ वेयर आई वांट टू फोकस मोर, मतलब ज़्यादा रिसर्च जो है वो मैं अपनी उसी डोमेन में I would prefer to do. ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक था, मतलब this was my research in my PhD. तो इसके बाद इससे पहले before that my PhD and my MBA from Netherlands, I was basically in Pakistan. I was working as in a bank. I was working with a bank in the position of management trainee program था उस बैंक का, उसमें select हुई, and then I was a management trainee, and then after that I started working there as relationship manager in corporate banking.
तो वहाँ पे मैंने इट वाज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस. आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट more than 3 years with the same bank. It had amazing career prospects. उनकी clientele was very huge थी और बहुत interesting clientele थी. The clients, it was really interesting dealing with those clients and everything. 3 साल का मेरा वहाँ पे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है और वेरी रिच एक्सपीरियंस. बट आई लेफ्ट द बैंक. आई रिजाइंड फ्रॉम देयर व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड. सो हायर एजुकेशन की जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो आई लेफ्ट दैट एंड व्हेन आई डिड माय कोर्स, मैंने अपना MBA कर लिया, फिर PhD भी कर ली. तो देन इट वाज लुक्ड मोर सेंसिबल टू मी टू ज्वाइन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं जहां पर मुझे अपनी रिसर्च जो है उसमें भी एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके एंड एज वेल एज आई कैन टीच. तो एंड देन आई एंडेड अप इन द यूनिवर्सिटी सेक्टर फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर से या बैंकिंग सेक्टर से. मैंने बट बैंकिंग सेक्टर में मेरा उस बैंक में 3 साल का काम था. उससे पहले भी मैंने 1-2 बैंक्स चेंज किए वहाँ पर भी मैं इसी तरह वाज वर्किंग एज रिलेशनशिप मैनेजर इन देयर एंड हैंडलिंग द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. उनकी भी बड़ी ह्यूज क्लाइंटेल थी और अच्छी बेस थी क्लाइंट्स की. बट देन आई केप्ट गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड आई केप्ट अवेलिंग द बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप हियर. उससे पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ था बिफोर ज्वाइनिंग द बैंकिंग इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर. और my masters and my previous degrees they were all with high academic roll of honor. तो दिस इज़ ये तो मेरा एकेडमिक और जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ भी बता दी है. ठीक है. आई एम वर्किंग हियर एट कॉमसेट्स फॉर लास्ट 3 years. यहाँ पे मैंने जो अपने कैंपस में आई हैव टॉट नंबर ऑफ कोर्सेज, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, एडवांसेस इन HRM पढ़ाया है. सो देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज एंड आई टॉट देम एट ऑल द लेवल्स. PhD को भी पढ़ाया है, MS को भी पढ़ाया है, फिर उसके बाद MBS को भी पढ़ाया है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टीचिंग दिस कोर्स एट इस लेवल के ऊपर, मतलब 300 लेवल का जो कोर्स है. इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं इसको इस लेवल के ऊपर इस कोर्स को पढ़ा रही हूँ. बट सो फार मैंने हायर लेवल्स के ऊपर जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो पढ़ाए हैं, जो कि मैनेजमेंट के भी, जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाई है. सो नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आई हैव टॉट. ओके, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था. इसके बाद लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स जो हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. तो इसमें हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो डिज़ाइन किया है कोर्स को, क्या क्या चीज़ें आप लोग इसमें देखने जा रहे हैं. पहले तो जो आज का जैसे हम लेक्चर करेंगे तो इसमें आई विल बी टीचिंग यू द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर. सो इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर में हम ये देखेंगे कि कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब मैं आज आपको बताऊंगी तो इसमें आपको पता चलेगा कि इट्स ऑल अबाउट एम्प्लॉय बिहेवियर, कि आपने उसको अलाइन कैसे करना है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो अभी इंट्रोडक्शन टू OB की जब बात करते हैं उसमें ये भी आपको बताऊंगी कि वाई स्टडी एम्प्लॉय बिहेवियर. ठीक है, कुछ चीज़ें जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उनमें जो दैट इज़ वाई आई वुड ऑलवेज ट्राई कि मैं जो हर अपना लेक्चर है उसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग करूं अपने पिछले लेक्चर की. वाई? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कोहेसन बिटवीन द डिफरेंट. एक तो लेक्चर्स में कोहेसन, इंटरेक्शन, लूप क्रिएट करने के लिए और उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए और आप लोगों की एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इंटरलिंक्ड. हम किसी भी एक टॉपिक को, किसी एक चीज़ को वी कैन नॉट सी इट एज स्टैंड अलोन. हम उसको स्टैंड अलोन नहीं देख सकते. देयर हैज़ टू बी कोई रब्बत होना चाहिए उन डिफरेंट जो इसके लूप्स हैं उनमें. ठीक है, तो ये सारे लूप्स हैं बेसिकली, तो दे मस्ट बी जॉइंट सम, इनके कोई ना कोई हर लूप का कोई ना कोई जॉइंट होना चाहिए. तो इस तरह से आई विल बी टेलिंग यू, दैट इज़ वाई उसका मकसद जो थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी लेक्चर. मेरा थोड़ा सा स्टाइल ये होता है कि आप लोगों के साथ वर्चुअल टीचिंग है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब क्लासरूम टीचिंग में होती हूँ मैं तो उसमें व्हाट आई प्रेफर इसकी मैं पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ उसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसका रिकैप करती हूँ. और एंड दैट रिकैप इज नॉट डन बाय मी बट दैट इज कमिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. ठीक है, आई एनकरेज देम कि वो पढ़ के आएँ. एंड आफ्टर दैट ये होता है कि वो रिकैप टर्न बाय टर्न डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रैंडमली आई आस्क वन स्टूडेंट और द अदर टू कम अप एंड गिव अ रिकैप.
ठीक है। तो इस तरह से फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको रैंडमली पिक किया जाता है हर क्लास में बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर एंड डू 10-15 मिनट्स का रिकैप करते हैं। उससे फिर ये होता है कि एक तो चीज़ें रीइंफोर्स हो जाती हैं और दूसरा फिर ये होता है कि देन आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, आप उसको लिंकअप भी कर सकते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के साथ एंड यू कैन सी देम मोर इन अ कोहेसन में। आप ज़्यादा उनको देख सकते हैं, मोर सेंस ऑफ टुगेदरनेस हो जाती है और आप उनको देख सकते हैं कि हाउ दीज डिफरेंट जो आप मैकेनिज्म्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनमें क्या लिंकेजेस हैं, ठीक है। तो वो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से मैं इन ओबी का जब आज इंट्रोडक्शन दूंगी इसमें एम्प्लॉय बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद हम इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर देखेंगे, उसका हम मॉडल देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मॉडल दैट हैज बीन गिवन, उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है और वो कैसे वो डिफरेंट वर्किंग्स होती हैं। तो ये जो मॉडल हम देखेंगे इसकी बेसिकली, या जो इंट्रोडक्शन में हम ओबी का मॉडल देखेंगे, ये सारे बेसिकली इनकी एक्सटेंशन है। हमारा जो पूरा कोर्स है वो इनकी एक्सटेंशंस पे बेस्ड है। आप ये समझ लें कि जो यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे, जो डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे, उनको हम आगे डिटेल में अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे फिर फॉलो करेंगे, इनका ब्रेक डाउन है जो हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। देखिए, हम देखेंगे एटीट्यूड्स और जॉब सेटिस्फैक्शन को देखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय बिहेवियर। जब हम पढ़ लेंगे उस मॉडल को, डिफरेंट एंटीसीडेंट्स पढ़ लेंगे एम्प्लॉय बिहेवियर के, उसके बाद हम देखेंगे एटीट्यूड्स। वाई? बिकॉज जो डिफरेंट एंटीसीडेंट्स हैं एम्प्लॉय बिहेवियर के, वहाँ पे जब हम ये देखेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे दीज एंटीसीडेंट्स दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लूप है, एक चेन है जिसका जो हर सिरा है वो दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सो उसमें क्या है कि एक टोटल, एक कंप्लीट देखें एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जो बिहेवियर है, एम्प्लॉय बिहेवियर है, वो एक एम्प्लॉय का आउटकम है। मतलब जो एम्प्लॉय बिहेवियर जैसे परफॉर्मेंस है, तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो आउटकम है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो तो आपका फाइनल आउटकम है, वो तो आपने दे दिया, लेकिन वो बिहेवियर के बहुत डिटर्मिनेंट्स हैं। अब मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ, कैसा परफॉर्म करूंगी, उसके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर्स भी आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएंगे, ग्रुप फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो मेरे बिहेवियर को कैसे, हाउ दे लीड टू माई बिहेवियर, दे वॉन्ट लीड डायरेक्टली टू माई बिहेवियर बट देयर विल बी सर्टन इंटरमीडिएरीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि आपके जो बिहेवियर है उसको लीड करेंगे। जैसे ब्लड, हार्ट पंप करता है ब्लड एंड इट रीचेस टू आवर वाइटल ऑर्गन्स पे पहुंचता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे पहुंचता है, बट हाउ? थ्रू द वेन्स। वेन्स आर द कैरियर्स, आर्टरीज आर द कैरियर्स, तो विच प्रोसेस करती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, दे टेक इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन ब्रिंग द बैड ब्लड बैक फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर उसको रिफ्रेश, उसको करने के लिए, अगेन उसको फिल्टर करने के लिए। तो इस तरह से जो देयर इज हैज टू बी अ लिंकेज, कि वो लिंकेज क्या है। तो एटीट्यूड्स जो हैं दे आर द बेसिकली लिंकेज। तो हम इनको समझेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में, और जॉब सेटिस्फेक्शन को हम पिक करेंगे एज अ जॉब एटीट्यूड एंड विल सी दैट हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉय बिहेवियर्स। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपका जो लेवल है उसको भी हमने कंसिडर करना है मद्देनजर रखते हुए। तो और प्लस ऑफ कोर्स हमारे पास क्रेडिट आवर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकते, ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस जैसे एटीट्यूड्स हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे एटीट्यूड्स को डिस्कस करें। लेकिन ये कि आई विल पिक एंड चूज वन, एक एटीट्यूड जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है, जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है, बिकॉज दैट इज़ अ मोस्ट जो बेसिक है और सबसे कॉमन और सबसे जो आप कह सकते हैं कि लिंक्ड टू अ डाइवर्सिफाइड नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है। Therefore, that is why it has been picked in your book as well. तो therefore वही यहाँ पर भी हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखेंगे कि हाउ द डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज आउटकम्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की अगेन जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम विल बी सीइंग के वाई पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट, हाउ दे इन्फ्लुएंस द आउटकम्स। कौन कौन से बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल है विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी मॉडल जिसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट देयर आर नंबर ऑफ अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे हाई सेल्फ मॉनिटर्स और लो सेल्फ मॉनिटर्स होते हैं, रिस्क टेकिंग होती है, इंडिविजुअल्स आर हाई और लो इन रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी और बी होती है। देन देयर आर
मैक पर्सनालिटी होती है, हाई मैक्स और लो मैक्स, ठीक है। प्रोएक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हाईली प्रोएक्टिव, सम आर लो इन प्रोएक्टिविटी, सेल्फ एफिकेसी है, पॉलिटिकल स्किल्स हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑन विच द इंडिविजुअल्स डिफर एंड हाउ विद द डिफरेंसेस इन द पर्सनालिटी ट्रेट्स द एम्प्लॉई आउटकम्स आर अफेक्टेड, how the employee behavior is affected because of the changes in the or the differences in the personalities or the because of the individual differences, उसके एम्प्लॉई आउटकम्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अ नंबर ऑफ मोटिवेशन थेरीज, ठीक है। काफ़ी सारी मोटिवेशन थेरीज हैं जो कि एक्सटेंड की गई हैं लिटरेचर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल थेरीज ऑफ मोटिवेशन सच एज मैस्लो, हेर्सबर्ग एक्सेट्रा। विल बी मूविंग टू द कॉन्टेम्परेरी थेरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, such as a self-determination theory हो गई, या other contemporary theories, goal setting theory, MBO, etc. So we'll be discussing the contempt self-efficacy theory, the contemporary theories of motivation को हम discuss करेंगे, and we'll also discuss the reinforcement theories, ठीक है। तो और behavioral theories जिनको हम बोलते हैं, but reinforcement theory is one of the behavioral theories। तो इन थेरीज को हम डिफरेंट थेरीज को डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वाई मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, हाउ यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज थ्रू द वर्क डिजाइन, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे इसमें इस चैप्टर में कि कैसे जो डिफरेंट वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जॉब कैसे आपका डिफरेंट आप वर्क प्लेस में फ्लेक्सिबल टाइम्स कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, पे प्रोग्राम्स, कॉम्पनसेशंस के थ्रू आप कैसे एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं, जो बेनिफिट्स हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो आप एम्प्लॉइज को दे सकते हैं इन ऑर्डर टू कीप देम मोटिवेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क डिज़ाइन के थ्रू कैसे मोटिवेटेड रखना है, वर्क डिज़ाइन में प्रोसेसेस में अपने क्या चेंज कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस करवा के अगर आप कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबल टाइम की क्या अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। फिर जो उनको अपने बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स एक्सट्रिंसिक देने हैं वो किस तरह के होने चाहिए, हाउ दोज रिवॉर्ड्स शुड बी डिजाइंड, वेदर दे शुड बी फिक्स्ड पेज होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, पेज होनी चाहिए, वेरिएबल पेज होनी चाहिए, कब हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, ये हम करेंगे अपने मोटिवेशन में। एंड विल बी सीइंग कि हम मोटिवेशन क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज जो मोटिवेशन है ये आपको एक्सप्लेनेशन देती है कि कैसे जो एम्प्लॉइज हैं वो परफॉर्म करते हैं one kind or the other type of behaviors, how and why and when the employees perform what type of behaviors। तो ये motivation theories जो हैं ये हमें उसकी they provide us very good explanation for that। उसके बाद हम will be seeing the organizational change, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चेंज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ चेंज कैन बी एन इम्पेडिमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इम्पेडिमेंट्स कैसे हो सकती है चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और क्या हर्डल्स हो सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज कितनी इम्पॉर्टेंट है, and if the organization is not adaptable, if it's not responsive to change, तो क्या consequences organization के लिए हो सकते हैं। फिर different theories पढ़ेंगे change की, will be seeing कि कैसे organization में change को easily inculcate किया जा सकता है या flourish किया जा सकता है, या employees को कैसे ज़्यादा adaptive बनाया जा सकता है। तो ये सारे concepts जो हैं related to change that will be discussing here। उसके बाद ethics, justice and fair treatment को हम देखेंगे कि how ethics are important at the workplace, ठीक है। एथिकल बिहेवियर क्या होता है, एथिकल डिलेमास क्या होते हैं, एथिकल कंसिडरेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और वो एम्प्लॉई के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि एथिक्स जो है उसको डिटरमिन किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं विच आर इन्फ्लुएंसिंग द एथिक्स ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉइज बिहेवियर, आप उस एम्प्लॉय के एथिकल बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन रिलेशन टू एथिक्स विल बी डिस्कसिंग द जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट एज वेल। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस प्रिवेल करता है, क्या टाइप्स हैं जस्टिस की, हाउ एम्प्लॉइज परसीव फेयरनेस, ठीक है, और उनके क्या आउटकम्स हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द इंडिविजुअल्स ओन बिहेवियर। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि हाउ वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हाउ कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जा सकती है, रिच सोर्सेज क्या हैं कम्युनिकेशन के, वीक सोर्सेज क्या हैं, चैनल्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, व्हेन टू यूज विच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और फिर उसके अलावा जो हर्डल्स हैं टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो हम देखेंगे, डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे कम्युनिकेशन के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्हेन विल बी डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, सो हम ये सारे फैक्टर्स उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीडरशिप को हम देखेंगे कि हाउ जो लीडर्स हैं उनका
क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, लीडर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीडर्स एंड द मैनेजर्स, व्हाट रोल डू द लीडर्स प्ले व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉय बिहेवियर्स, एम्प्लॉय बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह के क्या डिफरेंसेस हैं लीडरशिप में, लीडरशिप स्टाइल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल को देखेंगे, we'll be seeing the charismatic leadership, we'll be seeing ethical leadership, we'll be seeing online leadership, we'll be seeing self leadership. ये सारे concepts जो हैं leadership के ये हम इसमें देखेंगे and we'll try to identify and figure out कि किस तरह की जो leadership है वो ज़्यादा effective है, किस तरह की leadership कम effective है, ठीक है, कौन सा आपको leadership model use करना चाहिए, situation factors जो हैं वो how they influence the चॉइस ऑफ द लीडरशिप, ठीक है, और द लीडर्स जो हैं वो ट्रेट, उनके ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है लीडरशिप, और यू नो इट कैन बी चेंज्ड एंड इट इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक या लर्न हो सकती है. हाउ देयर हैज़ टू बी अ मैच और द फिट बिटवीन द लीडरशिप स्टाइल एंड द सिचुएशनल कंसिडरेशंस ऑफ द सिचुएशंस. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लीडरशिप का जब टॉपिक करेंगे तो उसमें कवर करेंगे. विल बी डिस्कसिंग पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, पावर, व्हाट आर द डिफरेंट पावर सोर्सेज, पावर की बेसिस क्या होती हैं, ठीक है, और फिर ये कि पावर जो है वो हाउ जो कौन सी पावर बेसिस को कब एक जो लीडर है या मैनेजर है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, और किस तरह का बिहेवियर और एम्प्लॉइज़ का वो डिराइव किया जा सकता है, कौन से पावर बेसिस ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कौन से ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किए जा सकते हैं, किन कॉम्बिनेशंस में आप डिफरेंट पावर सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम पावर को देखेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर हम पॉलिटिक्स को देखेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और इसी तरह पॉलिटिक्स के भी हम जो है वो डाउन साइड भी देखेंगे, और पॉलिटिक्स की जो पॉजिटिव साइड है वो भी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिकल बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, हाउ इट कैन एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव कब हो सकता है पॉलिटिकल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर. विल बी डिस्कसिंग कि समटाइम्स जो पॉलिटिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की दे कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट पॉलिटिकल एट ऑल, या जिनकी पॉलिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है उनके लिए बड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है, हु कंसिडर द पॉलिटिकल बिहेवियर अनएथिकल एज वेल, तो वो उनके लिए दे कैन इवन उनके लिए बड़े एक्सट्रीम आउटकम्स हो सकते हैं ऑफ द पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टर्नओवर. तो ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं ये हम पावर एंड पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे. इसके बाद वी आर गोइंग टू सी द सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, तो सेफ्टी एंड हेल्थ में वी विल बी सीइंग कि हाउ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है. इसमें वी विल बी सीइंग कि एम्प्लॉयर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ विद द सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस, और इसी तरह एम्प्लॉय जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके क्या राइट्स हैं व्हेन इट कम्स टू द सेफ वर्क प्लेस. हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क प्लेस, बिकॉज देखिए सेफ्टी भी रिलेटेड है टू द ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के साथ भी, बिकॉज हर ऑक्यूपेशन की अपनी अपनी सेफ्टी और हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. तो एज पर दैट हर जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी वेरी कर सकते हैं, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स हैं दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के, दे बोथ कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इसी तरह हेल्थ को देखेंगे, हेल्थ हैजर्ड्स को देखेंगे, कैसे एम्प्लॉय की जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ठीक है, वर्क डिज़ाइन कैसे किया जाना चाहिए कि आपको आपके लिए हेल्थ हैजर्ड ना वो काम बने, बिकॉज आपने अक्सर सुना होगा कि वर्क प्लेसेस के ऊपर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं विच कैन कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस वेरी हैवी फाइनेंशियल लॉसेस कॉज कर सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस कॉज कर सकती हैं. इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो लाइफ है वो लॉसेस जो हैं दे कैन बी कॉज्ड. तो इस तरह से हाउ सेल्फ और हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ के मैकेनिज्म्स को, और हम चूंकि ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, तो हम इसको देखेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय बिहेवियर कि कैसे एक सेफ्टी और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अफेक्ट करता है इन अ मोर पॉजिटिव वे, एंड इफ द एनवायरनमेंट इज नॉट सेफ एंड हेल्दी हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इन अ नेगेटिव वे में, कैसे वो उसको एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे. तो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को कैसे मैच किया जा सकता है.
ठीक है, और किस तरह का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दैट, किस तरह की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी हो तो दैट कैन मैच विद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो हाउ टू ब्रिंग और हाउ टू अचीव एन अलाइनमेंट between the organizational strategy and structure. So we'll also be discussing that what happens if the strategy is not aligned with the organizational structure. ठीक है, तो और फिर ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर के लिए क्या आउटकम्स हैं. What are the outcomes of the different forms of structure, such as हम functional structure को देखेंगे, metric structure को देखेंगे, divisional structure को देखेंगे. ठीक है, we'll be seeing the SPU structure business unit का, और फिर इस तरह से हम जो है वो ये will try to identify कि कैसे जो different forms of structure हैं वो different employee outcomes, they have different implications for the different employee behaviors or the outcomes. क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट वहाँ पे उनमें डिपार्टमेंटलाइजेशन डिफरेंट होती है, और दूसरे जो स्ट्रक्चर को हम जिन चीज़ पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हैं दे आर डिफरेंट. तो जब हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे. उसके बाद विल बी सीइंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को. विद रिस्पेक्ट टू दैट वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट को हम देखेंगे, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे. नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं. फिर हम डिस्क्रिमिनेशन को करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को करेंगे, उनको देखेंगे कि उनके एम्प्लॉय बिहेवियर्स पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इन्फ्लुएंसेस हैं. We'll also be discussing the diversity management. We'll try to differentiate between the diversity management, between discrimination, between equal employment opportunity. In relation to this, we'll also be discussing the concept of sexual harassment, and we'll also be seeing how sexual harassment influences the employee outcomes. क्या procedures, क्या mechanism होना चाहिए एक harassment free workplace बनाने के लिए, क्या response system management का होना चाहिए, how it should be in place. Management के क्या roles हैं, क्या responsibilities हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉई आउटकम्स पे क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. देन वील बी डिस्कसिंग द HRM प्रैक्टिसेस. ठीक है, जिसमें हम मेनली डिस्कस करने जा रहे करेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रैक्टिसेस को. इसके अलावा हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखेंगे, कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड्स को भी देखेंगे. क्योंकि लेकिन कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड्स को वी वुड ऑलरेडी हैव सीन दैट इन टर्म्स ऑफ जो है वो रिवॉर्ड्स एट द वर्क प्लेस में, जब मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ में भी हमने रिवॉर्ड्स का काफ़ी सारा पार्ट कर लिया होगा. देयरफॉर हम इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में रिवॉर्ड्स को, कॉम्पनसेशन को नहीं देखेंगे, बट विल बी फोकसिंग ऑन द अदर HRM बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फोकस करेंगे, और देखेंगे कि उनके क्या आउटकम्स के ऊपर, एम्प्लॉय आउटकम्स के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, कैसे हाउ द HRM प्रैक्टिसेस आर लिंक्ड विद एम्प्लॉय बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. देन विल बी सीइंग द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बिहेवियर. इसको हम देखेंगे कि हाउ स्ट्रेटेजिक HRM इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉयज बिहेवियर. तो इसमें हम स्ट्रेटेजिक HRM को पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि वो होती क्या है, किस बला का नाम है. हाउ वी अलाइन अगेन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विद HR स्ट्रेटजी, विजन मिशन के कॉन्सेप्ट्स इसमें देखेंगे. देन आई विल सी अलाइनमेंट इनकी के ऊपर आऊँगी, फिर आपको डिफरेंट अप्रोचेस बताऊँगी, बेस्ट फिट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देन वी विल बी सीइंग कि हाउ दिस स्ट्रेटेजिक HRM की जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो क्या इसमें और एम्प्लॉय बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या लिंकेजेस हैं. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अलाइन करना है तो आपको स्ट्रेटजी को वी कैन नॉट डू इट स्टैंड अलोन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. आप इंडिविजुअल्स, आप अपनी HR स्ट्रेटजी को इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते जो कि एम्प्लॉय बिहेवियर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन में अचीव किया जा सके. ठीक है, और आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स. देयरफॉर एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द टीम्स एंड द आउटकम्स. टीम्स के टीम बिल्डिंग, व्हेन टीम्स आर फॉर्म्ड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म टीम्स, क्या कॉम्बिनेशन उनका होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. और फिर देन वी विल बी कंक्लूडिंग अपने लास्ट जो सेशंस, हमारा लास्ट लेक्चर्स होंगे, उनमें हम इन सेशंस को कंक्लूड करेंगे. यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये जो जिस ऑर्डर में मैंने आपको ये आउटलाइन बताई है इसी ऑर्डर को हम फॉलो भी करेंगे. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स के लिए हम इसी आउटलाइन को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम स्ट्रक्चर को ज़रा एंड नीचे ले आएँ
27 28 नंबर पे ले आए, ठीक है। और जब स्ट्रेटजी और HRM और पहले आपको स्ट्रेटजी के HRM का बता दूं, उससे पहले आपको HR प्रैक्टिसेस का बताऊं, फिर स्ट्रेटजी के HRM का बताऊं, देन आई कम टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी तरह ही हम जो ग्रुप लेवल, इंडिविजुअल लेवल को पहले करने की कोशिश करेंगे वेरिएबल्स, फिर देन विल मूव टू द ग्रुप लेवल, देन विल मूव टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो इस तरह का हम एक ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है आपकी जो लेक्चर्स हैं वो हो सकते हैं। रेफरेंस मटेरियल जो हम फॉलो करने जा रहे हैं फॉर दीज लेक्चर्स, मेनली तो आप फॉलो करेंगे बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच इज़ फ्रॉम रॉबिन्स एंड जज की बुक है ये। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसका टाइटल है, और कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोग इसी बुक में से, मतलब मेरा ख्याल है आपका जो एटलीस्ट 70% ऑफ द कोर्स जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। तो ज़्यादा मेनली तो आप इसी बुक को फॉलो करेंगे और इसी में से ही अपना लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। इसी बुक में से आपका रेफरेंस मटेरियल, जो नोट्स हैं आपके, यहाँ पावर पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादा इसी बुक में से हैं। उसके अलावा जो कुछ लेक्चर्स हैं वो हम गैरी डेसलर में से करेंगे, ठीक है। ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है गैरी डेसलर की, उसमें से जैसे HRM से रिलेटेड जो हमारे हैं चैप्टर्स हैं वो हम इसमें से कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने एथिक्स वाला चैप्टर है, एथिक्स जस्टिस फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप इसमें से, ये आप बेशक अभी नोट कर लें कि कौन से हमने लेक्चर्स इसमें से करने हैं, ठीक है। एथिक्स जस्टिस वाला हम इसमें से करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट वगैरह वो हम इस बुक में से करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ को हम इस बुक में से करेंगे, ठीक है। और लेबर रिलेशंस का अगर मैंने आपको कोई लेक्चर करवाया तो हम शायद प्रॉबली वो इसमें से करेंगे, अगर इफ़ वी डू इट दैट तो, ठीक है। तो ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये हम इसमें से करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक में से। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बुक है, दिस इज़ बाय पीटर बॉक्सल एंड जॉन पुर्सेल। सो इसमें ये जो पहले इसके 2-3 चैप्टर्स हैं वो विल ओनली बी डूइंग दैट। और फॉर स्ट्रेटेजिक, जो आपको मैंने बताया ना कि स्ट्रेटेजिक HRM वाला जो आपका चैप्टर लेक्चर होगा, मेरा ख्याल है वो एक ही लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको ये वाला कवर करवा दूंगी। और वो इसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स उसके लिए आप लोगों को इसके चाहिए होंगे इस बुक के, या थर्ड में से भी शायद थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा ख्याल है मेनली ओनली फर्स्ट 2 चैप्टर्स इस बुक के, और वो एक आधा टॉपिक ही है जो हम इसमें से, इस बुक में से करेंगे स्ट्रेटेजिक HRM में से, जब हमने इनको लिंक अप करना है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को विद द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जब हमने ये देखना है कि हाउ स्ट्रेटेजी इज लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो दूसरा मटेरियल और कुछ चीज़ें समटाइम्स मैं आपको बता रही होती हूँ कि स्टडी को बता रही हूँ, या कुछ और कोई टॉपिक और आपको बता रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ जो कि इन बुक्स में समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती, मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट है। अगर मैं ये एग्जांपल या केस स्टडी या ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो दैट इज़ रेलिवेंट, लेकिन वो शायद मे बी दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर बुक, तो आप उसके लिए ऑनलाइन उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम विसल ब्लोइंग का करेंगे तो शायद आपकी बुक्स में आपको विसल ब्लोइंग के ऊपर कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ थ्रू, मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन पे और जो मेरा नॉलेज है मैं उसकी बेस के ऊपर आपको बता रही होती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आप विसल ब्लोइंग के ऊपर आप जब स्कॉलर को या गूगल के ऊपर जाएंगे तो आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, कोई इतनी एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही होती, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन सोर्सेज से मिल सकती है, विच यू कैन जस्ट सर्च एंड फाइंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो यू कैन जस्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, आप स्कॉलर खोलें, उसमें वो टॉपिक डालें, तो आपको उसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर स्कॉलर में आपको आर्टिकल्स मिलते हैं दे आर डिफिकल्ट फॉर यू, जस्ट गूगल कर लें उसको, डोंट ओपन स्कॉलर, सिर्फ गूगल करें। जैसे आपको मैंने विसल ब्लोइंग का बताया, तो जस्ट गूगल इट, गूगल के ऊपर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी जो कि ईजियर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आएगी। अगर आप स्कॉलर में खोलेंगे तो आपके आगे रिसर्च पेपर्स खुलेंगे, तो वो शायद इस स्टेज के ऊपर आपके लिए मुश्किल होगा उनको अंडरस्टैंड करना, या बेसिक, क्योंकि बिकॉज यू नीड ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ऑफ कोर्स दे डोंट हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट, वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, या वो इतना इजी लैंग्वेज में या इतने स्टूडेंट लैंग्वेज में वो नहीं होते रिसर्च पेपर्स, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप उसको जस्ट यू कैन गूगल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। अच्छा, इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि आज हम जो करने जा रहे हैं वी उसकी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हम पहले ये देखेंगे कि मैनेजर्स को हम देखेंगे, क्योंकि मैनेजर्स देखें दे आर द पीपल हु हैव टू गेट द वर्क डन,
ठीक है। तो वेदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, हम HRM को पढ़ रहे हैं, वी शुड नो कि मैनेजर्स का क्या रोल है, वो क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, बिकॉज मैनेजर्स ने अल्टीमेटली जो भी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं, एम्प्लॉय बिहेवियर है, if that needs to be aligned, anything that needs to be done in the organization, that has to be done through the managers, by the managers. Therefore start हम करेंगे मैनेजर से, उनके क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर विल बी डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देन विल बी सीइंग द वैल्यू ऑफ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, विल बी आइडेंटिफाइंग द contributions made by major behavioral science disciplines to organizational behavior, will list the major challenges and opportunities for managers to use OB concepts. तो बहुत ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को या इसकी जो इंट्रोडक्शन है इसको हमारे पास एक तो इतना टाइम भी लिमिटेड ही है, दूसरा ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया है कि मैं आपको हर लेक्चर में साथ साथ जहाँ जहाँ पे मुझे रेलिवेंट लगेगी जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ओबी या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या कंप्राइज करती है, कैसे, तो वो मैं आपको साथ साथ भी क्योंकि देती जाऊंगी। देयरफॉर अब ये इट विल जस्ट बी अ इंट्रोडक्टरी, एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा इंट्रोडक्टरी, और आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में इसकी बुक में ऑफ कोर्स मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जितना भी हमारे पास टाइम है, वी हैव ओनली दिस, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हमने इसी लेक्चर में वाइंड अप करना है। तो अभी जितना भी हमारे पास टाइम है अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे स्पेस आउट करते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर दे आर द इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल। सो मैनेजर्स ऑफ कोर्स दे आर नेवर द पीपल हु वर्क, जो खुद वो काम नहीं करते, बट दे गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है, सो मैनेजरियल एक्टिविटीज, दे मेक डिसीजंस क्या हैं। एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि मैनेजर्स खुद काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं। दे शुड नो हाउ टू गेट द वर्क डन, वर्क काम को मैनेज कैसे करना है, काम को उनको करवाना आना चाहिए थ्रू द अदर ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, द पीपल हु हैव बीन एलोकेटेड टू दैट मैनेजर, उनके थ्रू आपने काम कैसे करवाना है। तो एक्टिविटीज क्या है मैनेजर्स की, व्हाट दे डू, मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज, डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स। ठीक है, तो दूसरों को डायरेक्ट करते हैं कि हाउ दे हैव टू डू एंड व्हाट, उनको गोल्स दे दिए, गोल और के गोल सेटिंग उनके लिए करते हैं। ठीक है, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं, हाउ दे हैव टू डू द वर्क, हाउ दे हैव टू अचीव द गोल, देन दे मेक श्योर दैट द गोल्स आर अचीव्ड। जो उनको टारगेट्स दिए गए, गोल दिए गए, वो अचीव हुए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो रिसोर्स एलोकेशन है दैट इज डन बाय द मैनेजर्स, वो आपको पता है मैनेजर्स के हाथ में होती है रिसोर्स एलोकेशन। और जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो भी दैट इज ऑल्सो रेस्ट विद द हैंड्स ऑफ द मैनेजर्स, कि अगर कोई डिफरेंट इशूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है वो भी मैनेजर्स ही करते हैं। Acha, of course, the managers, where do they work? They work in the organization. An organization is a consciously created social unit which is composed of two or at least two people का composed होता है that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. ठीक है, तो एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए कंटिन्यूस फंक्शन के बेसिस के ऊपर जब 2 या 3 लोग कम से कम इकट्ठे हो जाते हैं एंड वर्क ऑन कीप वर्किंग कंटिन्यूसली, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स अ मैनेजर वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो 4 फंक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स defining goals, establishing strategy and developing plans to coordinate activities. ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मैनेजर का क्या रोल है कि वो प्लान करेगा, आप अपने गोल्स इस्टेब्लिश करेंगे, विजन बनाने में हेल्प करता है, मिशन बनाता है, अपने डिपार्टमेंट के लिए मिशन बना सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर विजन और मिशन होती है, तो वो हम बाद में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आगे डिटेल में कैसे बनती है। बट उस कॉर्पोरेट विजन और मिशन के लिए भी आपको पता है कि मैनेजर्स जो हैं वो अपना फीडबैक, अपनी इनपुट देते हैं, अपने SBU की विजन और मिशन बना के भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो गोल्स बनाने हैं, स्पेसिफिक गोल्स, डिपार्टमेंट के गोल्स, एम्प्लॉय हर इंडिविजुअल के गोल्स, इट इज ऑल, इसकी प्लानिंग जो है वो सारी मैनेजर कर रहा होता है। स्ट्रेटजी बनाने में भी मैनेजर जो है वो अपने टॉप लेवल मैनेजर्स को फीडबैक देता है, इनपुट देता है और उसमें भी वो हेल्प करता है। सो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है एक मैनेजर। फिर ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व है, डिटर्मिनिंग व्हाट टास्क्स आर टू बी डन, हु इज टू डू देम, हाउ द टास्क्स आर टू बी ग्रुप्ड, who reports to whom and where decisions are to be। जो स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजंस होते हैं, ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, कौन सा टास्क कौन करेगा,
ठीक है, हु इज गोइंग टू डू व्हाट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, इट इज ऑल द ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो काम है, जो आपने गोल्स अपने फिक्स कर लिए, आपने आपकी स्ट्रेटजी भी डिफाइन हो गई, आपने गोल्स भी अचीव कर लिए, डिसाइड कर लिए। अब वो हाउ टू अचीव दोज गोल्स, उसके लिए यू नीड टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। उसके बाद लीड करता है मैनेजर, ऑफ कोर्स, अ फंक्शन दैट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, डायरेक्टिंग देम इन ऑर्डर टू, उनको परसुएड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अडेप्ट कराना विद द विजन और द एंड द मिशन ऑफ द कंपनी, एंड उनको मोटिवेट करना कि वो उनको उस विजन और मिशन को अचीव करें। उसके लिए जो मोटिवेशन की जरूरत होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ अ लीडर। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट कैसे करना है इफेक्टिवली, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रही हैं, हाउ टू रिजॉल्व देम। ठीक है, एंड हाउ टू कीप द एम्प्लॉइज मोटिवेटेड, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दोज वर्कर्स। ठीक है, और उनको किस तरह से किया जा सकता है कि वो अपने पर्सनल गोल्स को सबऑर्डिनेट करें ओवर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये एक फंक्शन होते हैं लीडर के, और ये दीज आर ऑल टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजर। देन कंट्रोलिंग, विच इज मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज टू इंश्योर दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर, जहाँ पे वो ये देखता है कि हाउ द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड। अगर वो डिजायर्ड डायरेक्शन में, डिजायर्ड वे में परफॉर्म नहीं हो रही तो कहाँ पे डिविएशंस हैं, अगर वो डिविएशंस हैं उनको कैसे करेक्ट करना है। ठीक है, वेदर दैट टास्क और एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म्ड इन एन अदर वे, कोई और उसको करेगा या उसमें कोई क्या करेक्टिव एक्शन चाहिए। Whatever the corrective action is required, वो एक मैनेजर की ड्यूटी है कि वो उसको देखे, और वो बेसिकली कंट्रोलिंग है, एक्टिविटीज़ की, परफॉर्मेंस की कंट्रोलिंग है, एक्टिविटीज़ की कंट्रोलिंग है, एम्प्लॉयज़ की उनकी मॉनिटरिंग है। ठीक है, सॉल कंट्रोलिंग। अच्छा, मिन्सबर्ग ने भी मैनेजरियल रोल्स कुछ दिए हैं, तो लेट मी क्विकली रीड देम थ्रू फॉर यू पीपल। एक तो है फिगर हेड, इंटरपर्सनल रोल्स हैं ये देखें। इसमें फिगर हेड है दैट इज symbolic head required to perform a number of routine duties of a legal or social nature। ठीक है, तो बेसिकली फिगर हेड यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक सिंबल है, सिंबॉलिक हेड है ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हु इज सपोज टू परफॉर्म द लीगल और जो सोशल नेचर के फंक्शंस है कि वो ड्यूटीज परफॉर्म करे। उसके बाद लीडर, जैसे हमने पहले देखा, is responsible for the motivation and direction of employees. Then liaison, manager provides the liaison, maintains a network of outside contacts who provides favors and information। जो internal market, external जो liaison है वो provide करता है, उसका role play करता है एक manager between the different entities, internal and external। फिर उसके बाद उसका informational role है, जिसमें monitor है वो receives wide variety of information, serves as a nerve center of internal and external information of the organization. Then it plays the role of a disseminator, that is it transmits information received from outsiders or from other employees to members of the organization. Then it serves as a role of a spokesperson, that is it transmits information to outsiders on organization's plans, policies, actions and results, serves as expert on organization's industry। ठीक है, तो द मैनेजर बेसिकली परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। तो ये बेसिकली सारे देखें उसके इन्फॉर्मेशन रोल्स है ना, दे आर रिलेटेड टू द डिसेमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अगर वो विद इन है, इनसाइड है, तो वो यू कैन से दैट योर जो इन्फॉर्मेशन वो आउटसाइड से मिल रही है, वो जब एम्प्लॉयज़ की में डिसेमिनेशन की बात होती है तो वो उसका रोल है। स्पोक्स पर्सन है जब वो आउटसाइडर्स को ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के बारे में बता रहा होता है, पॉलिसीज, एक्शंस वगैरह के बारे में बता रहा होता है, तो वो स्पोक्स पर्सन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ को, एक्सटर्नल बॉडीज़ को, फॉर एग्जाम्पल मीडिया को बता रहा है या किसी भी और एक्सटर्नल बॉडीज़ को जब वो बता रहा है, तो दैट इज़ द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। फिर डिसीजनल रोल है मैनेजर का, विच इज़ द थर्ड, और इसमें क्या क्या आ जाता है, एंटरप्रेन्योर है, सर्च इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट्स प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज। ठीक है, कांस्टेंट जो स्कैनिंग है एनवायरनमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑन हाउ दे कैन बी टैप्ड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। सो दैट इज द एंटरप्रेन्योरल रोल परफॉर्म बाय द मैनेजर। फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस, जैसे एकदम से डिमांड गिर गई या कोई भी और स्लम्प आ गया, कोई भी और सोशल क्योस हो गया और एनीथिंग, एनी डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड, तो वो मैनेजर हैज टू प्ले द रोल ऑफ द डिस्टर्बेंस हैंडलर, बिकॉज अल्टीमेटली वो है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर है, विच इज मेक्स और अप्रूव्स सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल
डिसीजंस. सो दैट इज द रोल ऑफ रिसोर्स एलोकेटर. का रोल हमने पहले भी डिस्कस किया, प्ले करता है. एंड दैट ऑफ अ नेगोशिएटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशंस. आपकी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशंस हो रही हो, ठीक है, या और आपके नेगोशिएशंस हो, प्रोजेक्ट्स के लिए नेगोशिएशंस हो, ठीक है, यूनियंस के साथ आपके नेगोशिएशंस हो, तो ये सारे क्या है, मैनेजर एक्ट्स द रोल ऑफ अ नेगोशिएटर. 3 तरह की देखिए मैनेजर को या मैनेजमेंट में स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं. वन इज अ टेक्निकल स्किल्स विच इज द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज. ठीक है, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, जो स्पेसिफिकली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब है. उसके बाद ह्यूमन स्किल्स, आपने क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो देयरफॉर यू शुड नो कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे उनमें डायरेक्शन उनको देनी है काम करने के लिए, उनकी एबिलिटीज अगर कम है वो कैसे इन्हांस करनी है, हाउ टू मैनेज देम. फिर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आपको चाहिए विच इज द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज द डिफरेंट सिचुएशंस को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, और देन यू सी ये देखना कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट देम. सो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, उनके ऊपर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इफेक्टिव और सक्सेसफुल मैनेजर्स में. तो ये 3 हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे देखते हैं, कम्युनिकेशन पे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और नेटवर्किंग पे. इन चारों चीज़ों पे अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें आपको पता चल रहा है कि जो एवरेज मैनेजर्स हैं दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन कम्युनिकेशन, ठीक है, जबकि और दे स्पेंड लीस्ट ऑफ देयर टाइम इन नेटवर्किंग. जबकि जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन नेटवर्किंग, दैट इज 48% कंपेयर टू ओनली 19% which is spent by the average managers and only 26% that is spent by the effective managers. So आपको अल्टीमेटली अगर आप इफेक्टिव मैनेजर हैं तो डजंट मीन नेसेसरली कि आप सक्सेसफुल मैनेजर भी हैं. तो सक्सेसफुल मैनेजर्स ये स्टडी शो करती है कि वो वाले हैं हु स्पेंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दे स्पेंड मैक्सिमम एलोकेशन उनके टाइम की जो है वो है ऑन नेटवर्किंग. उसके बाद इज ऑन कम्युनिकेशन, then is after that is human resource management and on the last comes the traditional management. अच्छा, organizational behavior को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. We are entering organizational behavior now and it is basically a field of study that investigates the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. ठीक है, so the impact of individuals, groups and structure which is on the behavior within the organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving the organization. तो organizational effectiveness को basically improve करने के लिए जो behavior है within the organizations उसमें जो alignments हैं, जो उसको जो factors affect करते हैं उनकी study जो है वो that is organizational behavior. That is why इसी definition की वजह से मैंने आपके जो कोर्स आउटलाइन है उसमें स्ट्रेटजी को भी इंक्लूड किया, क्योंकि आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मींस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो है उसके साथ मैच अगर आप करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगी. तो इसलिए मैंने स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को एम्फसाइज किया और ऐड किया. स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 3-4 आपके इन सारे टॉपिक्स को मिला के लेक्चर्स रखे हैं इसमें, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी जरूरी है. क्योंकि एम्प्लॉय बिहेवियर अल्टीमेटली आपने अलाइन किसके साथ करना है, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ उसको अलाइन करना है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास आनी चाहिए. अच्छा, कॉम्प्लीमेंटिंग इंट्यूशन विद सिस्टमैटिक स्टडी. तो देखिए 2 तरह की होती हैं मैनेजर्स की भी. जब डिसीजंस होते हैं तो 2 तरह के होते हैं. कुछ मैनेजर्स जो हैं वो इंट्यूशन की बेस के ऊपर डिसीजंस करते हैं. इंट्यूशंस आर बेसिकली द फीलिंग्स अबाउट व्हाई आई डू व्हाट आई डू एंड व्हाट मेक्स अदर्स टिक. तो आपकी जो इंट्यूशन है दे आर बेसिकली इंट्यूटिव डिसीजन. जैसे आपकी सिक्स सेंस का डिसीजन हो, जैसे आपकी गट फीलिंग हो दैट यू फील दैट इट शुड बी डन दिस वे, ये होना चाहिए, तो अब उस बेस के ऊपर. सिस्टमैटिक डिसीजन इज ऑन द अदर हैंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टमैटिक. एक साइंटिफिक डिसीजन होता है जिसमें आप कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप एक सिस्टमैटिक वे में लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली स्पीकिंग जो आप डिसीजंस करते हैं दे आर द सिस्टमैटिक डिसीजंस, ठीक है, विच आर लिंकिंग द कॉज एंड इफेक्ट्स के. अगर इफ दिस इज सो तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा, इसका ये रिजल्ट निकलेगा, तो यू मेक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस बनाते हैं, कंक्लूजंस ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक एविडेंस, दे आर द सिस्टमैटिक डिसीजंस. तो मैनेजर्स को नॉर्मली जो डिसीजंस अपने करने चाहिए दे शुड बी बोथ, मिक्स ऑफ बोथ होने चाहिए. इंट्यूशन, इट्स नॉट दैट आप कंप्लीटली इंट्यूशन को इग्नोर करें. समटाइम्स मैनेजर्स का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो इंट्यूशन की बेस के ऊपर जो डिसीजंस करते हैं वो ठीक होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर रिस्क, उनमें एलिमेंट रिस्क का होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर नॉट साइंटिफिकली बट इंट्यूटिवली बेस्ड डिसीजंस.
अच्छा देखें, अगर हम मॉडल देखें ओबी का तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट बिहेवियरल साइंस में डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। और इनको हम ये तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन सबको इनका ब्रेक डाउन है हमारे पास आगे, ठीक है। सबसे पहले साइकोलॉजी को आप देखें कि साइकोलॉजी के अंदर विद इन साइकोलॉजी क्या क्या चीज़ें हम आगे अपने इन लेक्चर्स में देखने जा रहे हैं जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। उनमें हम लर्निंग देखेंगे, मोटिवेशन देखेंगे, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन, वर्क स्ट्रेस। तो ये सारे नंबर ऑफ वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के डोमेन में आते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को यानी कि एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल बिहेवियर को कैसे ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। इनको हम वन बाय वन ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों को अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ओबी फील्ड। उसके बाद आप देखें सोशियोलॉजी भी अगेन इट कंट्रीब्यूट्स थ्रू ग्रुप डायनामिक्स, वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है और जो ग्रुप बिहेवियर है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशल चेंज, कल्चर, इनसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करती है। तो दिस इज हाउ सोशियोलॉजी इज लिंक्ड टू ओबी। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी थ्रू अ नंबर ऑफ टॉपिक्स या डोमेन्स सच एज बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इनके थ्रू ये जो ग्रुप लेवल के ऊपर आपके जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं एम्प्लॉय बिहेवियर पे, इट इन्फ्लुएंसेस देम थ्रू दीज फैक्टर्स। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये how the OB learns from anthropology through comparative values, comparative attitudes, cross-cultural analysis at the group level and through organizational culture and environment at the organization system level. So there are a few absolutes in organizational behavior, that is contingency variables such as जैसे मैंने आपको पीछे वाला बताया कि क्रॉस कल्चरल हम एनालिसिस भी करते हैं, क्रॉस कल्चरल एटीट्यूड्स, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, इनकी स्टडी है। तो इसमें आप देखें कि हम यहाँ पे काफ़ी सारे अपने लेक्चर्स में ये इस तरह के एनालिसिस करते रहेंगे। क्रॉस कल्चरल के एक कंट्री में अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है, उसका कल्चर इस तरह का है, तो दूसरे कंट्री में इट मे नॉट होल्ड, ठीक है। सो एक्स में बी रिलेटेड टू वाई इन वन कंट्री बट इट मे नॉट बी रिलेटेड टू वाई इन एन अदर कंट्री, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैं आपको जहाँ जहाँ पे फॉलो इन करेंगी जो जो टॉपिक होगा उसके साथ बताती जाऊँगी कि कैसे ये डिफरेंसेस अराइज होते हैं। There are a number of challenges and a number of opportunities for organizational behavior जब हम अपने जो करंट ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो है उसकी बात करें, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत असरात हैं। हाउ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बी बिफोर, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स दे आर उनको अपने हेड काउंट सब कम रखने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। मतलब डिमांड जो आपकी ट्रफ्स हैं और बूम्स हैं इकोनॉमी में, वो स्लम्स और बूम्स जो हैं एज उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो जब बूम पीरियड होगा, जब डिमांड एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, इफ इट वॉन्ट बी फ्लेक्सिबल, इट वॉन्ट बी अडेप्टेबल टू चेंज, देन एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाएगी और एज अ रिजल्ट इट विल बी रनिंग इनटू लॉसेस, ठीक है। देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन है, जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं मार्केट के, एज अ रिजल्ट जो मार्केट जो ऑल द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन मार्केट, एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसमें जो डिमांड्स हैं कस्टमर्स की अगर एक जगह पे कम होती हैं तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर्स मे बी देयर इन एन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे एट एन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा हो, ठीक है। वाई? बिकॉज वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोबल विलेज। आपको पता है कि अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर फ्री ट्रेड रिजीम है, उसके बाद टैरिफ्स एंड कोटाज एक्सेट्रा देयर वो ऑलरेडी दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू मिनिमम। तो उसका क्या है कि जो इस तरह की आपकी जो इंडस्ट्री है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर अब सिर्फ इंटरनल मार्केट इन्फ्लुएंसेस नहीं है बल्कि अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हम जब अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स में ये बताऊंगी कि कैसे। उसके बाद आप ये देखें कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब क्या हुआ है कि इंक्रीजिंगली जो मार्केट्स हैं उनमें भी कन्वर्जेंस है और जो कंज्यूमर टेस्ट हैं डिमांड्स हैं उनमें भी कन्वर्जेंस है।
उसके बाद उसका रिजल्ट ये है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कंपटीशन बढ़ गया है फ्री ट्रेड के बाद, तो इसलिए कंपनीज जो हैं वो अपने आप को कम्पिटिटिव रखने के लिए दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो लो लेबर जिनमें कॉस्ट है, चीप लेबर इफेक्टिव जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उधर ले जाते हैं, so that they can benefit of the cheap production from the low cost countries and as a result of that क्या है कि आपकी जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं ना एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो अब आप देखें कि इंक्रीजिंगली जो ऑनलाइन जॉब्स प्लेस होती हैं, जॉब एडवर्टीजमेंट्स जो हैं दे आर ऑनलाइन इंक्रीजिंगली, ठीक है, और आपका जो है वो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा हो गई है नाउ। अब ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी बन गई हैं कि हाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, बाउंड्री लेसनेस ज़्यादा हो गई है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं, ठीक है, पीपल दे आर वर्किंग एट वन प्लेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब आपको ज़्यादा जो मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं कंपेयर टू इट व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर। सो ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर एंड मैनेजिंग पीपल ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। सो ये सारी जो हैं ये रिस्पॉन्सेज हैं टू ग्लोबलाइजेशन, ये चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, क्योंकि इसके सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, ले ऑफ्स के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, इन सारे फैक्टर्स के बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे इसलिए नहीं इन सारी चीज़ों को बता रही क्योंकि हम आगे भी इन्हीं चीज़ों को जब करेंगे तो उसके रेफरेंस में भी कुछ और डिटेल आ जाएगी। अच्छा, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, ऑफ कोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस ग्लोबलाइजेशन एंड स्टाफ देयर इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के क्या चैलेंजेस हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये देखें कि मेजर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैटेगरीज, जैसे जेंडर की डाइवर्सिटी अब इंक्रीजिंगली हो गई है, फीमेल्स की आप देखें रेशो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फिर रेस है, एज है, डोमेस्टिक पार्टनर्स, नॉन क्रिश्चियन जो हैं वो दे आर इंक्रीजिंगली ऑफ कोर्स अमेरिका वगैरह में, देन नेशनल ओरिजिन, अब अमेरिका वगैरह में डाइवर्सिटी खास तौर पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बाय 2020 आप ये नहीं कह सकेंगे कि इट्स अ कंट्री ऑफ वाइट्स, ठीक है, यहाँ किसी एक बैकग्राउंड से, किसी एक एथनिक बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी हो जाएगी। उसके बाद देखें कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, और अपॉर्चुनिटीज क्या है कि इट नीड्स टू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी दैट इट नीड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ को जो टारगेट्स दिए जाएं कि कैसे आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एम्प्लॉय बिहेवियर को कैसे अलाइन करना है इन ऑर्डर टू मीट दीज चैलेंजेस बाय द जो इंटरनेशनलाइजेशन के चैलेंजेस हैं। देन रिस्पॉन्डिंग टू लेबर शॉर्टेजेस, दैट इज़ अगेन हम अपना जब एक लेक्चर करेंगे कोई एक, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे लेबर शॉर्टेजेस जो हैं वो हाउ इट कैन बी अ डिलेमा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन एम्प्लॉयज़ को रखना और रिटेन करना, अट्रैक्ट करना जो कि स्पेशली हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, और कैसे उनकी स्कार्सिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ये एक चैलेंज है। देन ऑफ कोर्स रिटायरमेंट्स आर अर्लियर, ओल्ड वर्कर्स का ये सारी इन्फ्लुएंसेस हैं, दे आर ऑल कॉजिंग द लेबर शॉर्टेजेस एंड इंप्रूविंग द कस्टमर सर्विसेज एंड अदर चैलेंज बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने देखा कि कैसे मार्केट की कन्वर्जेंस है, कंज्यूमर टेस्ट की कन्वर्जेंस है, एंड अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या बाहर से आपको बेटर सर्विसेज मिल रही हैं तो कॉम्पिटिशन एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ गया ना, ऑल द वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया कि सारी वो एक मार्केट बन गया है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ द क्वालिटी वो भी बढ़ गई हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था कि जैसे इट नीड्स टू इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर के ऊपर, कंसर्न फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर रिलेटेड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट। अगेन और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, एम्पावरिंग पीपल, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज, कोपिंग विद टेम्परेरीनेस, हेल्पिंग एम्प्लॉइज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। ये सब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चैलेंजेस है। अब इन सारी जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सबको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको इनकी इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, हम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आगे अपने अगले लेक्चर्स में यू विल बी सीइंग देम। जस्ट अ फनी कार्टून आउट देयर विच सेज दैट डाउन साइड टू एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर इसकी समझ आएगी कि एम्पावरमेंट, एम्प्लॉई की एम्पावरमेंट का मतलब क्या है।
सो ये बेसिकली कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ empowered to accept all the blame, because जब हम empowerment की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम autonomy की बात कर रहे हैं, हम accountability की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें control कम होता है और accountability ज़्यादा होती है, that you have to decide the way you have to do the things। आपको एक गोल मिल गया है, आपने इसको कैसे अचीव करना है, क्या रास्ता आपने अपनाना है उस गोल को अचीव करने के लिए, what are the different options you have, which option you have to choose, you are free to do that, you have the full autonomy how you have to do it, ठीक है, but of course you are accountable at the end, you are accountable for the outcomes, कि जो भी किया एंड होगा उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके लिए then you will be responsible for that, so that's why he is saying it here, so it's kind of आप समझने के मतलब टॉन्ट है। अच्छा देखें, ये मॉडल जो है ओबी का, इसमें अब हमारे पास 3 लेवल्स आ गए, इंडिविजुअल लेवल आ गया, ग्रुप लेवल आ गया और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल आ गया। तो हमने इसके बाद देखें स्टडी बेसिकली ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो होता है जो अफेक्ट हो रहा होता है फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अ नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ओबी में, जैसे प्रोडक्टिविटी है विच इज अ परफॉर्मेंस मेजर दैट इंक्लूड्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कितने आपने गोल्स अचीव किए और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किस प्राइस पे, किस कॉस्ट पे अचीव किए हैं। एब्सेंटिज्म, आप यू नो द फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क, यानी कि आप एब्सेंट होना अपने वर्क से। टर्नओवर, द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। डेविएंट वर्क बिहेवियर्स, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। वॉलंटरी बिहेवियर्स दैट वायलेट सफिशिएंट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड देयरबाय थ्रेटन्स द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो हम डिटेल में इन सबको डिस्कस करेंगे। ओसीबी को डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। Discretionary behavior that is not part of an employee's formal job requirements but that nevertheless promotes the effective functioning of the organization। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में भी एक लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं इनकी क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हो सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जिसमें अगेन आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उन्होंने ब्रेक डाउन करके फ्यू, हमने ये नहीं कह सकते कि इसमें सब कुछ है, इंडिविजुअल लेवल के पे भी और हो सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, परसेप्शन, मोटिवेशन, इंडिविजुअल लर्निंग, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ठीक है, बायोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी सारी इनमें से करेंगे अपने शुरू के लेक्चर्स में इंडिविजुअल लेवल को जब हम कवर कर रहे होंगे। फिर ग्रुप लेवल के ऊपर आ गया लीडरशिप, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वर्क टीम्स हैं, पावर पॉलिटिक्स है, ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे व्हेन विल बी डिस्कसिंग दिस। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर आ गया HRM पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, ठीक है। फिर इसमें हम एक एडिशन जो मैंने की है वो है स्ट्रेटेजी की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे टुगेदर influence the employee outcomes in terms of employee productivity, absence, turnover, deviant work behavior, citizenship, satisfaction, etc. तो ये ह्यूमन फैक्टर्स को, आउटपुट को, ऐसे ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो आपके सामने इस फिगर में आ रहा है। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर विच वाज द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा बुक से एक दफ़ा इन चीज़ों को पढ़ें, बड़ी सिंपल सी हैं बहुत ज़्यादा। अभी जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो इसी मॉडल की आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो हम आगे अपने 30-31 लेक्चर्स में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनको इसलिए मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी बिकॉज आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू टू द टॉपिक, ठीक है। तो आई होप के थिंग्स आर क्लियर विद यू। आई होप यू एंजॉय द अपकमिंग lectures with me. I wish you all the best for this course. See you again next time. Thank you. Allah Hafiz.